अपने ही दोस्त की हत्या, प्रेम था त्रिकोण, गिरफ्तार हुए आरोपी दोस्त। पत्थर खदान में अपने दोस्त की बेरहमी से हत्या करने के बाद उसका शव अपनी दादी के घर में छुपाने से भी वो नहीं बचा। पुलिस के सिंकेज में आरोपी दोस्त, पुलिस रसद की मांग करते हुए उसे दुर्गापुर उपमंडल अदालत ले जाया गया। बुधवार शाम को दुर्गापुर के पारोलिया के दामपाड़ा से 20 वर्षीय अनिल भुइया का शव बरामद किया गया। दुर्गापुर थाने के पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी। पुलिस सूत्र के अनुसार आकाश भुइया मृतक अनिल भुइया का प्रिय मित्र था। अनिल के हाथ पर आकाश का नाम और आकाश के हाथ पर अनिल का नाम गुदा हुआ है। जांच के आधार पर इस हत्या के पीछे त्रिकोण प्रेम सामने आता है। अनिल भुइया के एक लड़की से प्रेम प्रसंग था और आकाश उस लड़की से शादी करना चाहता था। आकाश काफी समय से अनिल से विवाद कर रहा था। बुधवार की सुबह पारोलिया के पत्थर खदान के बगल में नशे में धुत दंपत्ति झगड़ने लगे। जैसे ही बड़बड़ाना चरम पर पहुंचा, अनिल के हाथ उसके शरीर के पीछे बांध दिए गए और उसके पैर उसकी गर्दन पर काले कपड़े से बांध दिए गए और उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी दोस्त अंडाल के बहुला स्थित मौसी के घर में छिप गया। आकाश भुइया को बुधवार की रात दुर्गापुर थाना पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को पुलिस रसद की मांग करते हुए उपमंडल अदालत ले जाया गया। मृत युवक की मां सीता भुइया ने आरोप लगाया कि उनके बेटे अनिल का आकाश भुइया से कभी कभी झगड़ा होता था। কি হয়েছে ছেলের কি নাম? অনিল অনিল কি অনিল ভুঁইয়া বাবু কি করে ও? ও খাদানে কাজ করে। কি খবর পেলেন? ওইটাই খবর পেলাম, বলছে কি ওইখানে একটা লোক ওইখানে পড়ে আছে। নিয়ে আমি ওরা গেলাম, থেকে লোকগুলাম খবর দিয়েছে কি তোমার ছেলের মতন লেগেছে। আর আমরা ড্যাম পাড়াতে থাকছি, ও ওইখান থেকে খবর দিয়েছে। তবে আমি মনে ভাবছি যে সারাদিন আসে না, তাহলে আমার ছেলেটা মনে হয় আছে। ওর হাতে কি নাম লেখা আছে? ওই আকাশ বন্ধু আছে ওর বাবু। আকাশের নাম লেখা আছে আকাশের নাম লেখা আছে, অত ফোন করে না। কিন্তু ওর নাম তো অনিল। হ্যাঁ, আমার ছেলের নাম অনিল। আর হ্যাঁ। যার সঙ্গে যে নিয়ে গেছিল তার নাম আকাশ বাবু। ওর বন্ধু? হ্যাঁ, ওর বন্ধু। ও বন্ধুর নাম লেখা আছে হাতে? হ্যাঁ তো কে নিয়ে গেছিল? ওই বন্ধু নিয়ে গেছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনোদিন আসে না, কাজের বেলাতে ও নিয়ে চলে গেল। জানো, এত ভালো ছিল আমার, আছে না আমার কি একটা কথা বললে না তোমাদেরকে হাসান দিবে, রেগে থাকবে। তো আজকে কি শুনলেন? এখন কি শুনলেন? ওই শুনলাম, ওই খবর দিলে বলছে কি তোমার ছেলের মনে হয় ওইখানে মেরে ফেলা নিয়েছে, না বেঁধে ফেলা নিয়েছে। আমরা খাবার রান্না করেছিলাম, সারাদিন হাত পা বাঁধা ছিল। হ্যাঁ, নিয়ে বললাম কি তাহলে খাবার রান্না করছি, দিনও খেয়ে যায় না ছেলেটা। কখন বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে? ওই 7টা বাবু কাজে যায় খাদানে। হ্যাঁ, তো সকালে 7টা কাজে যায়। বলছি যে কার সাথে গেছিল আজকে? ওই আজকে ওদের সঙ্গে গেল। কি নাম? আকাশ। যখন কাজে যাবার সময় ছিল না বাবু, ওর বন্ধু? वहीं कुछ दिन पहले आकाश ने अनिल का स्मार्टफोन तोड़ दिया था। अनिल ने गुस्से में अपने दोस्त आकाश का मोबाइल भी तोड़ दिया था। तब से आकाश और आकाश के परिवार वाले अनिल की मां और अनिल को धमकी दे रहे थे। कुछ समय से आकाश के साथ अनिल की बातचीत भी बंद हो गई थी। अनिल शादी करने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करके पैसे बचा रहा था। उसकी मां की शिकायत थी कि उसका दोस्त आकाश अनिल पर शादी न करने का दबाव बना रहा था। बुधवार की सुबह अनिल पत्थर खदान में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने जा रहा था। अनिल उसे ले गया। शाम को खबर मिली कि पारुलिया के पास पत्थर खदान में अनिल की हत्या कर दी गई। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर जांच में तेजी लाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई और भी शामिल है या नहीं। অনিল আপনার কে হয়? অনিল আমার বড় শালা। বড় শালা? কি করে অনিল? অনিল মানে খাদানে আমাদের সঙ্গে কাজ করে। তো আপনিও খাদানে কাজ করেন? হ্যাঁ, আমিও করি। তো সকালে আমরা সব লেবারগুলো রেডি ছিলাম। ও বললে কি জমায়েত আমাকে 20 টাকা দে, আমি আজকে যেতে পারি নাও যেতে পারি। আমরা গাড়ি দাঁড় করে আমরা বেরিয়ে গেল, ও কাজে যায় না। তারপরে ও আর একটি বন্ধু থাকে আকাশ, চাষি বানে, ঠিক। এবারে ও প্রায় যায়, ও যখন কিছু টেনশন থাকে ইয়া থাকে প্রায় যায়। তো দাসিয়াবান গেছি, আমি সকালে ভাত নিতে এসেছি। সকালবেলা দিদিকে বললাম অনিল এসছে, না আসে না। এখন 5টার সময়, আমরা 5:30টার সময় কাজ থেকে এলো, দিদিকে সুতন এলো না। তারপরে আমার একটা বড় শাশুড়ি থাকে, হ্যাঁ ওখানে যথা ওই ছেলেটা থাকে ওখানে। তো বড় শাশুড়ি মানে আমার শাশুড়িকে ফোন করেছে কি দিদি এমনি এমনি ব্যাপার, ও মানে মদ খেয়ে না কোথাও পড়ে গেছে।
তো এখানে যখন আমরা লোকগুলো যে ছেলেগুলো যায় আমার শাশুড়িগুলো যায় খুঁজতে, আমরা এদিকে তাকি রঘুনাথপুরে কি হয়েছে এখানে? এইখানে শুনলাম মার্ডার কেস হয়েছে। কি দেখলেন আপনারা, কি দেখলেন? আমরা দেখলাম জাস্ট আমরা এসেছিলাম, এই গ্রুপে দেখে এসেছিলাম, আমরা পশ্চিম বর্ধমান আদিবাসী গাঁওতার এটা জড়িত আছি, তো এই গ্রুপটা দেখে আমরা এসেছিলাম এইখানে। কি মানে যে ছেলেটি মারা গেছে সে কি আদিবাসী? না, সে আদিবাসী নেই, সে ভূঁইয়াদের। ভুইয়াদের কোথায় থাকে? ও থাকে তোমার ড্যামপাড়ায়। কি কি ড্যামপাড়া কি নাম? এখানে কি করে বডিটা এলো? এইখানে বডিটা সে বলতে পারছে না কি করে এলো না এলো। ও শুনলাম ওর মায়ের মুখ থেকে যে ওরা কাজ করতে বেরিয়েছিল, কি কাজ করে? এমনি খাদানে কাজ করে, দিনমজুরি কাজ করে। আচ্ছা, ও এসেছিল এখানে কাজ করতে। কি নাম ওর? নিতুম ছিল এইখানে, নামটা কি কেমনি বললো নামটা। আচ্ছা, কাজ করতে এসেছিল তারপরে শুনলাম নাকি বাড়ির থেকে যে হয়েছে হলো যে আমার ছেলে এমনি হয়েছে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। कुलटे के लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी होने जा रही है, जिसको लेकर आज आसनसोल डीआरएम बिल्डिंग से तथा आसनसोल नगर निगम की संयुक्त टीम ने कुलटे रेलवे स्टेशन के निकट फुट ओवर ब्रिज बनाने को लेकर अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जहां रेल अधिकारी तथा निगम प्रशासन में सहमति बनी कि आजी कॉलोनी के पास से ब्रिज बनाया जाएगा, जो CISF रोड में निकले। ये ब्रिज 7.5 मीटर चौड़ा तथा 1 किलोमीटर घुमावदार होगा, जिससे किसी की संपत्ति का नुकसान नहीं हो। ये ब्रिज रेलवे तथा सेल की जमीन पर बनेगा। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के उप मेयर वसीमुल हक, पार्षद सलीम अख्तर अंसारी तथा स्थानीय लोग के साथ साथ रेल अधिकारी मौजूद थे। एक लंबे समय से डिमांड था और ये ज़रूरत भी है कि यहाँ जो रेलवे क्रॉसिंग है, मेन लाइन है, हर समय में गेट बंद होता है, लोगों को आने जाने में, स्कूल के बच्चे हो या बीमार लोग हों, खासतौर से उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है समय का। हम लोग हमेशा इसका प्रयास किया। इस बार हम लोग का लिए एक गोल्डन चांस ये था कि यहाँ का संसद हम लोग का हुए, शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनके सामने भी आपके पार्षद लोग इस इलाके के, हम लोगों ने भी प्रपोजल रखा था और ये समय एक अच्छा समय हो गया, गोल्डन समय कि फ्लैट कॉरिडोर का भी काम हो रहा है। उसमें इस इलाका में फ्लाईओवर ब्रिज बनाने के लिए प्रपोजल आया है। कॉरपोरेशन में रेलवे डिपार्टमेंट के लोग आए थे, हम लोग ज्वाइंट आज विजिट किया। 3-4 इनका प्रपोजल था, 3-4 प्रपोजल में एक प्रपोजल जो ये आपका इस साइड से होते हुए जो फ्लाईओवर ब्रिज है, इसमें कोई मकान का नुकसान नहीं हो रहा। बकिया में जो है वाई टाइप का जो बनाने का है, ये यू टाइप होगा, इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। वाई टाइप भी हम लोग इसको देखा, वाई टाइप में है जो एक पतियाना के मोहल्ला और एक ही साइड में वहाँ से उठ के जीत जाएगा, इसमें काफ़ी मकान और दुकान का नुकसान हुआ। आज भी क्या चीज़ का निरीक्षण किया गया? आज निरीक्षण जो हुआ है ये हम लोग का ओवर ब्रिज का है। MP इलेक्शन के टाइम में शत्रुघ्न सिन्हा जो आए थे यहाँ पर, तो हमने उनको प्रपोजल दिया था कि नली गली छोड़ करके हम लोग को बहुत अहम है यहाँ का ओवर ब्रिज का। लगभग हम लोग 10,000 हैम्पर करते हैं यहाँ। ये प्रपोजल ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट पास हो गया, स्टेट गवर्नमेंट भी हो गया है। आज यहाँ इंक्वायरी के लिए आया था, इंशाल्लाह ये कुल्टी के लिए बहुत खुशी की बात है जो हम लोग का ये ओवर ब्रिज तो हम लोग को होगा। कौन कौन मौजूद थे आज के ब्रिज के निरीक्षण? के डिप्टी मेयर थे, सारे इंजीनियर थे और DRM के जो लोग थे वो लोग थे, रेलवे के और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो लोग था। और पूरा स्केच आया हुआ है, ऑलरेडी स्केच हम लोग उसको पास कर दिए हैं। अब ये प्रोसेस जा रहा है, प्रोसेस में लगभग कितने दिन में ये कार्य स्टार्ट किया जाएगा? करीबन कितने समय लग सकते हैं? समय का तो लगभग तो आज तो फर्स्ट फेज का काम हुआ, अब सेकंड फेज में ज़मीन वगैरह का एक्वायर है, ये है वो, मतलब हम लोग का ये जो है क्लियर हो गया। अब ज़मीन एक्वायर है, उसके बाद अपना काम स्टार्ट हो जाएगा। आपका नाम? मोहम्मद सलीम अख्तर अंसारी, काउंसलर वार्ड नंबर 3। बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सालानपुर थाना अंतर्गत फुलबेड़िया बोलकुंडा ग्राम पंचायत अंतर्गत सड़क के किनारे खाली जंगल से एक युवती का अर्धनग्न शव बरामद होने से इलाके में काफी सनसनी फैल गई। स्थानीय सूत्र के अनुसार सालानपुर थाना क्षेत्र के फुलबेड़िया ग्राम पंचायत के सामडी मदाई चक से बोलकुंडा जाने वाली सड़क के किनारे जंगल में एक युवती का अर्धनग्न शव मिला। खबर मिलते ही आसपास के लोग जुट गए, इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी। स्थानीय लोगों के अनुसार बदमाशों ने युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। इसकी सूचना सालानपुर थाने के सामने कैंप की पुलिस को दी गई।
खबर पाकर सालानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाटी, एसीपी सुकांत बैनर्जी, सामडी कैंप प्रभारी दीपक मंडल व पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि जब स्थानीय लोगों ने युवती का शव बरामद किया तो स्थानीय लोगों ने पुलिस का विरोध किया और स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की सुरक्षा पर सवाल उठाए। ज्ञात हो कि युवती स्थानीय निवासी और उच्च शिक्षित है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। हालांकि पारिवारिक सूत्र के मुताबिक युवती मंगलवार की सुबह पिकनिक के लिए घर से निकली थी और गुरुवार को घर नहीं लौटी। একটা মেয়ের বডি পাওয়া গেছে যেটা অর্ধনগ্ন প্রায়, ঠিক আছে। তো গ্রামের মানুষ বা আমরা সন্দেহ করছি সেটা মার্ডার এবং আশা করছি রেপ প্লাস মার্ডার। তো এইরকম ঘটনা কি আগে ঘটেছে বা এরকম? না দেখুন, আগে এরকম ঘটনা ঘটেনি, কিন্তু আমাদের এই ফাঁকা রাস্তার মধ্যে মাঝে সাঝে যে বাইরের মানুষ হয়, ঝাড়খণ্ডের মানুষ বা ধরুন রানীগঞ্জের মানুষ হয় মদ খাচ্ছে বা একটা গ্রুপ করে মিটিং করছে বা নেওয়াজপুরের মানুষ, এরকম বহুবার হয়েছে, আমরা কমপ্লেনও দিয়েছি। তো কি মনে করছেন এটা? এটা দেখুন একটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছে, কেন মেয়ে ছেলের ব্যাপার, কারণ রাত 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 9টা পর্যন্ত 10টা পর্যন্ত এদিকে মেয়ে ছেলেরা যাতায়াত করে, একটা এলাকাটা ভীতির সৃষ্টি হয়েছে। তো কি পুলিশের প্রশাসনের তরফ থেকে কি বলবে, প্রশাসনের ব্যবস্থা নিয়ে কি বলবে? দেখুন আইসিকে আমরা লোকাল থেকেও কমপ্লেন দিল, বেশ একটু লোকাল থেকে মানে অনেক কিছুই বললেন ওনাকে, ঠিক আছে। আর দীপকবাবুর এখানে যে ক্যাম্প ইনচার্জ আছে তিনি খুবই নিষ্ক্রিয় তিনি। প্রায় পর একের পর এক ঘটনা ঘটে একের যাচ্ছে। পর এক আমরা কমপ্লেন দিয়েছি, ট্রাকের বলুন, চুরি চামারির বলুন, কিন্তু আজি সাহেব কোনো স্টেপ নেন না, ওনারও কোনো অ্যাকশন নেই। আচ্ছা, যে মেয়েটা পাওয়া যাচ্ছে কোথাকার, এটা যে পাওয়া গেছে? মেয়েটা হচ্ছে এই আমার কাকু হয়, ঠিক আছে, এই কাকুরই মেয়ে, আমাদের পাহাড়গোড়ার গ্রামের। ওরা আজ 3-4 বছর ধরে বুলকোনা গ্রামে ভাড়া থাকতো। আপনার নাম? আমার হচ্ছে দেবব্রত রায়। ঘটেছে কাকা? ঘটনা পরশুদিন 1:30টার ভিতরে বললাম। बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। आज आरटीओ तथा आसनसोल दुर्गापुर ट्रैफिक विभाग के सहयोग से एक अभियान चलाया गया। इसके तहत जिन 4 पहिया वाहन चालकों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा या टैक्स फेल रहेगा, उनका जुर्माना किया जाएगा। इस बारे में आरटीओ कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि आज यह अभियान चलाया गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया है। साथ ही जिनका टैक्स फेल है उनको जुर्माना किया गया तथा उनको राज्य सरकार की नई छूट के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि 2023 के 31 दिसंबर तक जिनका टैक्स फेल है वह अगर 29 फरवरी 2024 तक टैक्स नहीं देते हैं तो उनको सिर्फ टैक्स देना पड़ेगा, उनको जुर्माना नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि परमिट के मामले में भी जिनका परमिट का पैसा बाकी है वह अगर जनवरी में चुका देते हैं तो 100% जुर्माना माफ़ किया जाएगा और फरवरी में चुकाने पर 80% जुर्माना माफ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को इन छूटों के बारे में जानकारी दी जा रही है। আজকে আমরা এবং ট্রাফিক জয়েন্ট আমরা মানে আরটিও অফিস এবং ট্রাফিক জয়েন্টলি আমরা এখানে রেড করছি। মূলত প্রাইভেট গাড়ির উপর জোর দিয়ে সমস্ত রকম গাড়ি ধরা হবে, মূলত প্রাইভেট কার যাদের সিট বেল্ট ছাড়া ঘুরছেন বা ট্যাক্স ফেল আছে। কারণ এই মুহূর্তে আপনারা জানেন যে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে সরকার একটা বিশাল বড় ছাড় ঘোষণা করেছেন। যাদের 31/12/2023 অবধি ট্যাক্স ছাড় ট্যাক্স ফেল আছে তারা যদি 29/2/2024 মধ্যে ট্যাক্স দেন তাদের মূল ট্যাক্সটা দিলেই হবে। জরিমানার যে পোর্শনটা থাকবে সেটা পুরোটাই সরকার মকুব করে দিয়েছেন। এবং পারমিট এবং ট্যাক্সের ক্ষেত্রেও জানুয়ারি মাসের মধ্যে দিলে পরে 100% জরিমানা মকুব এবং 29 ফেব্রুয়ারির মধ্যে দিলে পারলে 80% জরিমানা মকুব হচ্ছে। বিশাল বড় সুযোগ রয়েছে, যার জন্য আমরা এটা প্রচারও করছি, তার সাথে সাথে আমরা চেকিংও করছি। আজকে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানে কত এখন ডিউজ আছে আপনার ট্যাক্স? आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। प्रशिक्षण प्राप्त डिजास्टर मैनेजमेंट के कर्मियों ने 30 दिन काम देने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय के सामने विरोध जताया। इससे पहले शहर के भैरव स्थान मोड़ से माचनतला तक रैली के माध्यम से डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां तख्तियों बैनरों के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया गया, जिनकी मांग है कि अगर काम नहीं दिया जाता है तो मृत्यु दीजिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड आपदा मित्र फाइटर संगठन बांकुड़ा जिला कमेटी की तरफ से कई सूत्री मांगों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में संगठन की तरफ से सायान चक्रवर्ती ने PBTV के माध्यम से ये बातें कही। দেখুন, আপনারা হয়তো পুরো বিষয়টাই জানেন যে আগের বার আগামী 20 তারিখে আমাদের দাবি মূলত ছিল, সারা পশ্চিমবঙ্গ দেখেছে হয় কাজ দিন নয় 20 দিন। আগামী বিগত 2022-এ আমরা আপদ মিত্র রেসিডেন্সিয়াল ট্রেনিং NDRF-এর মাধ্যমে করেছিলাম, কিন্তু দীর্ঘ 1.5 বছর হয়ে গেল
আমরা আজ পর্যন্ত কোনো কাজ পাইনি। আমাদের প্রাপ্য ইমার্জেন্সি রেসপন্ডার কিট দেওয়া হয়নি। আমরা বারবার লাগাতার ডিএম অফিসের কাছে আমাদের আবেদন জানিয়ে এসেছি, যে কোনো আধিকারিকের কাছে, কিন্তু কোনো রকম সুরাহার ব্যবস্থা করা হয়নি, কোনো রকম কর্ণপাত করা হয়নি। আমরা অসহায়, আমরা বঞ্চিত, আমরা নিপীড়িত, আমরা শোষিত। আমাদের আবেদন জানি আমাদের দেয়ালে ফিট ঠেকে গেছে। আমরা এই অবস্থায় কি করব আমরা নিজেরাও খুঁজে পাচ্ছি না। বাড়িতে আমাদের অসহায় বাবা মা, বৃদ্ধ বাবা মা, আমরা গরিব ফ্যামিলি থেকে বিলং করি। আমরা কয়েকটা অস্থায়ী কাজ, এত উচ্চ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে আমরা কয়েকটা কাজের দাবি করছি। সেই কাজের দাবিটা কি আমাদের প্রাপ্য নয়? আমাদের প্রাপ্য অধিকার নয়? আমরা ট্রেনিং করেছি, সেই ট্রেনিংটা যদি আমরা প্রয়োগ না করতে পারি, সেই ট্রেনিংয়ের মানে কি? এত উচ্চ প্রশিক্ষণের মানে কি? 1.5 বছর ধরে কি সারা বাঁকুড়া জেলাতে কোনো বিপর্যয় আসেনি? আমপান, করোনা, মহামারী, যে কোনো ধরনের বাস অ্যাক্সিডেন্ট, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট আসেনি? আমাদেরকে বলা হয়েছিল বিপর্যয়ে ডাকা হবে, কিন্তু কেন ডাকা হয়নি? আজ সিভিকরা কোনো ট্রেনিং না করে তারা মাসে স্যালারি পাচ্ছে 9 থেকে 10 হাজার টাকা, আর আমরা এত। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। 5 जनवरी को बंकोला एरिया कॉलोनी से एक व्यक्ति की स्कूटी चोरी हो गई थी। उखड़ा फाड़ी में इसकी शिकायत दर्ज के बाद उखड़ा चौकी की पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। 7 जनवरी को पुलिस ने स्कूटी चोरी की शिकायत के आधार पर एमडी मोगिन, एहसान अली और शेख दिलाबर नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पहले व्यक्ति को बंकोला के गुलमोहर क्लब से सटे मुस्लिम मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरे को बंकोला नंबर 4 कब्रिस्तान इलाके से गिरफ्तार किया गया। अदालत में न्यायाधीश ने दोनों बदमाशों को 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। बुधवार तड़के पुलिस ने आरोपियों की हिरासत के दौरान चोरी की स्कूटी बरामद कर ली है। एक जांच अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि हिरासत की अवधि समाप्त हो गई है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। Ramapto Chatterjee Memorial Art and Music College, Kala Bharati, Painting, Sculpture, Bharatnatyam, Kathak, Manipuri और Robindra नृत्य एडमिशन चलছে। Admission open for degree and diploma courses. Kala Bharati, NSB Road, Raniganj. Call 993224. बांकुड़ा कलेक्ट्रेट एवं लैंड रिफॉर्म सेटअप में 100 पूर्ण नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति के विरोध में पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ बांकुड़ा जिला कमेटी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया एवं डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ की तरफ से बताया गया है कि हाल में ही एक नोटिफिकेशन में जानकारी दी गई है कि बांकुड़ा कलेक्ट्रेट एवं लैंड रिफॉर्म सेटअप में 100 पूर्ण नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी संघ की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल एवं ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। जिला सचिव विश्वजीत घोष ने कहा कि राज्य भर के कार्यालयों में 3 लाख से अधिक पद रिक्त है, लेकिन कोई नियुक्ति नहीं है। भर्ती के स्थान पर पूर्ण रोजगार देकर बेरोजगार युवाओं को वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्ण नियुक्ति के बाद भी उन्हें दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सभी रिक्त पदों की स्थायी नियुक्ति की मांग करते हैं। নিয়োগ করা চলবে না, রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে বেকার যুবকদের স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে হবে। রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শূন্য পদে বেকার যুবকদের স্থায়ী পদে নিয়োগ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন জিন্দাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন জিন্দাবাদ। রি-এমপ্লয়মেন্ট মানছি না, রি-এমপ্লয়মেন্ট মানছি না। রি-এমপ্লয়মেন্ট নয়, বেকার যুবকদের কাজের সুযোগ দিতে হবে। রি-এমপ্লয়মেন্ট নয়, বেকার যুবকদের কাজের সুযোগ দিতে হবে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के छोरा ग्राम पंचायत के शीतलपुर कोलियरी डिस्पेंसरी के पास भाजपा की ओर से प्रतिवाद सभा का आयोजन किया गया। इस प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक व पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र कुमार तिवारी ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। पांडवेश्वर এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের দলের নেতৃবৃন্দ যারা উপস্থিত আছেন, মঞ্চের সামনে আপনারা যারা ছোরা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথ থেকে উপস্থিত হয়েছেন, একটু আগে আপনারা শুনলেন যে কেন আমরা প্রতিবাদ সভা করতে বাধ্য হলাম। আপনারা জানেন যে 2021-এ যে বিধানসভা নির্বাচন, সেই নির্বাচনে আপনারা সবাই বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন।
কিন্তু কাউন্টিং এ কারসাজি করে জোর করে আমাদেরকে এই বিধানসভায় পরাজিত করা হলো। তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা চলছে। মামলা নিষ্পত্তি হলে दूध का दूध और पानी का पानी হয়ে যাবে। আপনারা জানতে পারবেন যে আপনারা যাকে ভোট দিয়েছিলেন তারাই জিতেছে। এখানে জিএম আছে আর রাত্রে অন্ধকারে টিএমসি সঙ্গে মিলে কয়লা বিক্রি করছেন। এই জিএম দেরকে বলে দিই, ঘর থেকে বেরোতে দেব না, অফিস থেকে বেরোতে দেব না। এই জিএম দেরকে বলছি, কয়লা চুরি যদি বন্ধ না করেছো, বালি চুরি যদি বন্ধ না করেছো। আমি যখন বিধায়ক ছিলাম আমি কিসের ওপেনিং করতে যেতাম? কোথাও স্কুল হতো তার ওপেনিং করতে যেতাম, কোথাও হেলথ সেন্টার হতো তার ওপেনিং করতে যেতাম, কোথাও রোড হতো তার ওপেনিং করতে যেতাম, কোথাও ড্রেন হতো তার ওপেনিং করতে যেতাম। এখন যারা আছে তারা কিসের ওপেনিং করে? কয়লার প্যাচের ওপেনিং করে। কয়লার প্যাচের ওপেনিং করতে যায় এরা কয়লার প্যাচ জওয়ানেরা যারা আছে তাদের সঙ্গে পার্টনারশিপে কাজ করছে সব তৃণমূল কংগ্রেস নেতারা। এরা শ্রমিকদের জন্য কথা বলে। এরা সব সময় কোথাও শুনেছেন পৃথিবীতে কারো বেতন কমে যায়? সব জায়গায় মানুষ লড়াই করে তাদের বেতন বাড়ে। আমি যখন এলাম যারা 12,000 বেতন পেত লড়াই করে তাদের 18,000, 20,000, 22,000, 24,000 বেতন নিয়ে গেছিল। তাদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হলো। হাই পাওয়ার কমিটি যে রেকমেন্ডেশন দিল্লি থেকে যে টাকা পাঠানো হচ্ছে সেটা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছে এই অফিসাররা আর তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা ঠিকাদাররা মিলে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছে। গরিব মানুষ কিন্তু পয়সা পাচ্ছে না। যদি কেউ প্রতিবাদ করছে বলছে তোমাকে কাজ করতে হবে, তুমি বসে যাও। গরিব মানুষকে কাজ থেকে বসে। इस अवसर पर भाजपा नेता संजय यादव, उमेश मिश्रा, रामशीष सिंह, संतोष मुखर्जी, सुजन सूत्रधर, संजीव बावरी, पार्थो पाल, पिनाकी मिश्रा, प्रहलाद साव तथा हजारों की तादाद में भाजपा समर्थक मौजूद थे। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। गुरुवार को रानीगंज कुमार बाजार स्थित स्वामी विवेकानंद सेवा केंद्र आश्रम प्रांगण में जागरण संस्था की तरफ से जरूरतमंदों के बीच लगभग 350 कंबल वितरण किया गया। इस दौरान यहाँ उपस्थित थे संस्था के प्रेसिडेंट संदीप भालोटिया, सेक्रेटरी उज्जवल मंडल, सुशील गनेलीवाला, आसनसोल नगर निगम के MMIC दिव्यंतु भगत, श्री श्री सीताराम जी मंदिर कमेटी के प्रेसिडेंट विमल बाजोरिया, विवेकानंद सेवा केंद्र आश्रम के प्रेसिडेंट डॉक्टर रूपानंद पॉल, अनिल सिंह, विद्युत पांडे, सेवा केंद्र के सुब्रत नंद जी महाराज सहित और भी विशिष्टगण। बहुत बड़ा একটা ব্যাপার আছে কি আমি এই অটো রেপুটেড একটা আমাদের সংস্থা আছে পঞ্চায়েত যখন ছিলাম তখন থেকে নাম শুনতাম, আমি আসতে পারছি। আজকে আমরা একটা ভালো কাজে দিতে পারছি। আমাদের জাগরণ সংস্থার যত মেম্বার আছে ওরা মিলে আমাদের এই বছরে মোটামুটি আমরা 350 কম্বল ডিস্ট্রিবিউশন আমরা করতে পারছি। ওটাই একটা লেভেলে আজকে আমরা এখানে 150 কম্বলের ডিস্ট্রিবিউশন করবো। 100 কম্বল করে 50 করে আমরা 2-3 জায়গায় আমরা করে দিয়েছি। আর আমরা আশা করি এরকমই আমরা হেলথে বা এডুকেশনে আর কাজ করতে পারবো, যেরকম আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে আমরা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। स्वादिष्ट वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए अब आपके शहर में खुल गया है माँ भोजनालय। अच्छी सेहत के लिए अच्छा खाना तो अब कैसा शर्माना। जी हाँ, आज ही लजीज भोजन के लिए पधारे रामबगन रानीगंज के माँ भोजनालय में, जहां आपको मिलेगा देशी घी का मिट्टी बर्तन में बना हुआ देसी चंपारण मीट। इसके अलावा चिकन करी, चिकन चिल्ली, भापा इलिश, चिंगड़ी मलाईकारी, पॉम्फ्रेट, फिश करी, मटन कोशा, सरसों पावड़ा झाल, आलू पराठा, रुई पोस्तो एवं स्पेशल स्टार चटनी। हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का वेज एवं नॉन वेज थाली भी उपलब्ध है। हमारा पता है माँ भोजनालय, NSP रोड, रानीगंज, रामबगन। हमारा मोबाइल नंबर है 9475505861, 8597541873। हमारा टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक और रविवार को शाम के 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और स्वादिष्ट भोजन का लाभ उठाइए। आसनसोल नगर निगम के 31 नंबर वार्ड अंतर्गत एक वेस्टेड जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर आज 31 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस युवा के अध्यक्ष मोहम्मद इजहार अली ने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की। इस बारे में इजहार अली ने कहा कि 31 नंबर वार्ड इलाके में एक वेस्टेड जमीन है जो कि 13 कट्ठा है। उस पर उस इलाके के लोगों की सहूलियत के लिए एक कम्युनिटी हॉल बनाने के बारे में सोचा गया था, लेकिन जब उस कम्युनिटी हॉल को बनाने के लिए जमीन का निरीक्षण किया गया तो पाया कि उस जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके रखी है।
इस मुद्दे को लेकर आज उन्होंने मेयर विधान उपाध्याय से मुलाकात की और उनसे आग्रह किया कि इस बारे में उचित कार्रवाई करें। वही जब उनसे पूछा गया कि इस संबंध में 31 नंबर वार्ड के पार्षद की क्या भूमिका है, तो इजहार अली ने कहा कि इस बारे में पार्षद से उनका कोई बात नहीं हुआ है और पार्षद वहां पर क्या कर रही है इसके बारे में उनका कोई जानकारी नहीं है। मेयर साहब के पास आए हुए थे कि हमारे 31 नंबर वार्ड में एक 13 कट्ठा वेस्टेड एरिया था, तो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे उस पर कम्युनिटी हॉल करना चाह रहे थे, कम्युनिटी सेंटर। तो हम लोग जब उस पर गए तो देखे कि 13 कट्ठा एरिया जो कि यहाँ पे वेस्टेड एरिया है, गवर्नमेंट का ज़मीन है, तो वो किसी ने दखल करके रखा है और उस पर बाउंड्री किया हुआ है और 2-3 मार्केट भी बना के रखे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि मेयर साहब इस मुद्दे को देखें और आगे हमारे कम्युनिटी हॉल के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे प्रोसेस में डालें। ये जो आप बता रहे हैं कि किसने किया है, ये यहाँ पे हम लोग पूरा एग्जैक्ट नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन जैसे ललन, त्रिलोकी, ये लोग 2-3 जन नाम है, भाई है, आपस में गोतिया नैया है, जो भी भाई है आपस में वो लोग उस वेस्टेड एरिया का भी हिस्सा बंटवारा करके। वही इस दौरान मेयर विधान उपाध्याय ने पीवीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। না ওয়েস্টার্ন এটা অলরেডি আগে এসেছিল এবং আমার ইঞ্জিনিয়ার ওখানে ভিজিটও করেছে, সার্ভেয়ার ভিজিটও করেছে, করার পর বিএলআরকে অলরেডি চিঠিও দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিএলআরও এখনো পর্যন্ত আমাদেরকে জানাতে পারেনি। সেটা আমি আবার আজকে আমাদের যে সার্ভে অফিসার আছে তাকে বললাম যে বিএলআরকে জানিয়ে দিতে, যে তাড়াতাড়ির মধ্যে আমাকে জানিয়ে দিই, তাহলে যারা দখল করছে সেইগুলোকে আমরা মানে প্রসেস করতে পারবো। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। पश्चिम बंगाल आसनसोल की डीलोलॉज स्थित भाजपा के द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा के कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मंत्री व पश्चिम बंगाल के भाजपा प्रभारी बने मंगल पांडे उपस्थित हुए। मंगल पांडे इस कार्यक्रम से अपने नेता और कार्यकर्ताओं में अपने भाषण से विरोधी दलों पर बिना किसी का नाम लिए हमला बोलते हुए नई ऊर्जा भरने का काम किया। उन्हें मन से कभी भोजपुरी तो कभी हिंदी में विरोधी दलों पर बंगभूमि से दहाड़ लगाते हुए राज्य के भ्रष्टाचारियों को एक तरफ जहां खुली चेतावनी देने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने श्री राम मंदिर का विरोध करने वाले को भी जमकर खरी खोटी सुनाई। साथ ही में राम मंदिर के लिए पिछले 500 वर्षों से लड़ाई करने वाले उन पूर्वजों की याद दिलाई जो 22 जनवरी के दिन श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित नहीं रहेंगे। उनके सपनों को साकार होने का हम गवाह बनेंगे, इस ऐतिहासिक पल का हम हिस्सा बनेंगे। हम बताते चले कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेता मंगल पांडे का आसनसोल दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। वो इसलिए कि आसनसोल लोकसभा सीट एक बार नहीं बल्कि 2 बार भाजपा का रह चुका है। ऐसे में ये सीट तृणमूल के खेमे में जाने से भाजपा को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वो इसलिए कि ये सीट हिंदी बहुल क्षेत्र है। ऐसे में इस सीट का भाजपा के हाथ से निकल जाना भाजपा सहन नहीं कर पा रही है। यही नहीं, 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान में भाजपा ने 200 के पार के सपने देखे थे, जिसका पूरा कमान भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय संभाल रहे थे, पर भाजपा का वो सपना टूटकर बिखर गया। तृणमूल ने बंगाल में भाजपा को जोरदार पटकनी देते हुए सरकार बना ली। ऐसे में भाजपा लोकसभा 2024 चुनाव के लिए बंगाल की कमान भाजपा नेता मंगल पांडे के हाथों में सौंप दी, जिसके बाद मंगल पांडे ने लोकसभा चुनाव की बिगुल आसनसोल से ही फूंकने का काम किया है और भाजपा द्वारा आयोजित लिट्टी चोखा कार्यक्रम में केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के साथ साथ भाजपा सांसद लॉकेट चैटर्जी, सौमित्र खा, भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल, डॉक्टर अजय पोद्दार, कृष्णेंदु मुखर्जी सहित आसनसोल के ब्लॉक लेवल के नेताओं और कर्मियों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही सबके साथ लिट्टी चोखा खाकर उसका भरपूर आनंद उठाकर भाजपा कर्मियों के अंदर नई ऊर्जा भरने का काम किया। भाजपा के द्वारा लिट्टी चोखा का कार्यक्रम किया गया है और लोकसभा का चुनाव भी है, तो किस तरह का क्या तैयारी चलेगी, यहाँ से शुरुआत होगी इस मंच से? देखिए, 22 जनवरी 2024 का दिन 140 करोड़ भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव का दिन, जो भारतीय संस्कृति है उसको एक नई ताकत और ऊर्जा मिलने का दिन, भारत की जो सनातन परंपरा है उसकी पहचान और पकड़ और मजबूत होने का दिन 22 जनवरी 2024 है, जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम विराजेंगे अपने उस भव्य मंदिर में, जिसकी आकांक्षा लगभग 500 वर्षों से भारतवासियों ने अपने मन के अंदर रखा था। और आज हर भारतवासी को अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे गर्व है कि एक ऐसा नेतृत्व देश के सामने आया जिसने
500 साल के उस गुलामी को समाप्त करने की दिशा में सार्थक कदम ही नहीं उठाया, सार्थक निर्णय तक उस विषय को पहुंचाया और संपूर्ण सनातन परंपरा और व्यवस्था को मानने वाले लोग, हिंदू परंपरा को मानने वाले लोगों की जो आस्था उस अयोध्या के श्री राम मंदिर में थी, उसको उन्होंने मजबूती दिलाई और भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास भी उन्होंने किया और उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से जब देश के अंदर जो हमारी सनातन व्यवस्था है, सनातन परंपरा है, हिंदू परंपरा है, उसको जब मजबूती मिल रही है, ताकत मिल रही है, जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे, उन गुलामी के प्रतीकों को जब हम समाप्त कर रहे हैं और हमारा पुराना जो इतिहास रहा है, हम उस इतिहास को एक बार फिर से गौरवान्वित कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कठिनाई हो रही है, परेशानी हो रही है। उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो पुरातन परंपरा और संस्कृति थी, एक बार फिर से मजबूत हो रही है, जो उन्हें नहीं सुहाता है। वैसे लोगों को जो दूसरे देश की परंपराएं, मान्यताएं हैं या दूसरे देश के लोगों के जो विचार हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए वो लोग भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध कर रहे हैं, उस पूज्य कार्यक्रम का भी विरोध कर रहे हैं। देश की जनता उसका जवाब देगी। यह देश लोकतांत्रिक देश है और संजोग से इसी वर्ष इस देश के अंदर लोकतंत्र की आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।